की मैसिव ट्रोलिंग चल रही है अभी। एक एक दिन में 80,000 कमेंट्स आ रहे हैं और हेट कमेंट्स। एंड ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि शी कॉल्ड फॉर इट बिकॉज Kashish and Digvijay are not on the same page, right? They don't, obviously, because of whatever is happening, they don't share a good bond right now. That betrayal कि आप कैसे किसी को promises करके एंड शो पे जाके इतना गंदा ट्रीट कर सकते हो। तजुरी में सॉरी बोला, उसने मुझे ऑफ स्क्रीन सॉरी बोला 2-3 बार। देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज apologetic. I feel Big Boss comes with a lot of controversies. Hello guys, welcome to Tele Masala. This is me Ampika Singh, your host and host, and today we have Shubhi जो हमें बहुत सारी बातें बताने वाली है, स्प्लिट्स विला के कई राज खोलने वाली हैं आज यहाँ पर। So शुभी, फर्स्टली तो कैसी हैं आप एंड लाइफ कैसी चल रही है अभी आपकी? अभी आफ्टर डूइंग स्प्लिट्स विला तो बहुत अच्छी चल रही है ऑनेस्टली, बिकॉज बहुत प्यार मिला है एंड आई थिंक फैंस की वजह से काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही है। ऑल क्रेडिट्स टू देम। या बट प्यार के साथ साथ शुभी कहीं ना कहीं ट्रोलिंग, थोड़ी बहुत हेट एंड बहुत सारा प्यार तो मिल ही रहा है, उन चीज़ों को कैसे डील कर रहे हो? देखो, मेरे को स्टार्टिंग से जैसे ही पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माय जर्नी एंड माय स्टोरी, मेरे को उसके बाद से हेट मिला ही नहीं था। अब जाके इस पेज पे हेट मिला है मुझे कि just because I think I cared for my friend. क्योंकि कशिश was not doing good and she was, when I say it I mean it. मैंने उसको 2 दिन देखा क्योंकि उसकी मैसिव ट्रोलिंग चल रही है अभी। एक एक दिन में 80,000 कमेंट्स आ रहे हैं और हेट कमेंट्स। एंड ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि शी कॉल्ड फॉर इट बिकॉज उसके डिसीजन से ऑब्वियसली किसी भी डिसीजन के हमारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बट क्या है ना, पीपल थिंक सोशल मीडिया बुलिंग इज ओके. I really feel social media bullying takes a toll on your mental health and that is not right. And that doesn't mean that I'm not supporting Digvijay. मैं ये बोल के थक गई हूँ guys. Digvijay is my very good friend. I am there for her. I'm supporting him the most. But the thing is, आप बताओ, आपके सामने कोई भी इंसान ब्लीड कर रहा है, कोई भी इंसान डूब रहा है, why will you not be there? मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी रहूँगी, तो कशिश तो मेरी दोस्त है. And no matter the decision, if she's going through something, I'm gonna be there for my friend. So I am just taking stand for her, and I think that should be even Digvijay would be happy about it. कि जिसको hate मिल रहा है उसके साथ कोई तो खड़ा है जिसके साथ कोई नहीं है. So I think I'm not doing anything wrong about it. उसकी वजह से hate मिल भी रहा है तो कोई बात नहीं. At least मैं जिसके लिए करना है उसके लिए कर रही हूँ. अच्छा. Yeah. Also yesterday you was there in party, but Kashish was missing. But क्या reason था? क्या कुछ idea है आपको? Because she is good friend of yours. Yeah, the thing is, Kashish and Digvijay are not on the same page, right? They don't, obviously, because of whatever is happening, they don't share a good bond right now. So I think it was okay for her to not come, and I'm not sure if she was invited or no. Yeah, actually Digvijay ने कहा that she was invited. She was invited? Yeah. Okay. If she was invited, still I don't think अभी उसका आना भी वहाँ पे sensible था, because until the heat of the moment goes down and people get adjusted to it, I think it's not okay for them to meet and sort things out. Yeah. आप मिले हैं कशिश से जब से ये चीज़ें हो रही है? तो इसीलिए तो so why I was there for her, because मैं 2 दिन जिस दिन हुआ ना हेट वाला चीज़, जिस दिन फिनाले आया स्टार्ट हुआ, and suddenly I'm seeing massive hate coming on her. The thing is कि people are comparing it with the hate that Roshali has received, that Akriti has received. I understand they have also received hate for months. In fact, उनका तो स्टार्टिंग में मोस्ट हेटेड टाइप से ही हो गया था. आकृति का स्टार्टिंग में, रोशाली का द मोमेंट आई एंटर्ड. बट द थिंग इज, आकृति हैड जैश, रोशाली हैड हर्ष. Who does Kashish has? She doesn't have anyone. So I saw her above and beyond, and I saw her breaking down. वो एक दिन में कशिश का क्या है ना, she lives like a queen. She does not let her guards down. So she doesn't even show people कि she's going through something. But I saw her, उसकी मम्मा से बात हुई मेरी. Auntie was worried. Auntie was crying on call. अब ये सब देख के कोई कैसे नहीं रहेगा अपने दोस्त के लिए? That was the things. And because of that, people started calling me Dogla, Bangan. They started making Bangan वाले emojis on my. This is the first time ever that people started questioning me as a person. And I think it's okay, guys. But you have to understand that if you can't be there, at least appreciate the person who is there, because कोई भी किसी को भी चोट लगे ना यार, you have to be there for the person. Unknown के लिए भी रहना चाहिए हमको, तो known के लिए तो रहना ही चाहिए. I mean, that is not something that I regret doing. Yeah. Also, her one statement is going viral that
कि मैं मंथली 1 लाख रुपीस रेंट पे करती हूँ एंड उन्होंने 10 लाख के लिए दिग्विजय को डिच कर दिया. सो एज अ ऑडियंस अगर मैं आपसे पूछूँ, सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? Decision wasn't right. I'll always say that. वो मैंने कशिश को भी बोला है. For me, as per my opinion, my POV, if I put myself in a situation like that, I would never do it to a person for sure. But वहाँ पे, if I want to understand कशिश, I somewhere can, because उसका point ये रहता है ना कि she did not see them winning, and then another thing is कि उन लोग का कोई love connection नहीं था. So उस type से her decision was her choice. Yeah. I can't question that a lot, but of course I don't support that decision, and I think it wasn't fair for Digvijay for sure. एंड व्हाट डू यू थिंक कि जो आकृति एंड जसवंत ने टाइटल अपने नाम किया है, क्या वो डिजर्विंग थे? Yeah, as per me they were deserving. Even जब मैं शो के अंदर भी थी ना, the thing is कि I will not say that they were sidelined, but because of their actions, mostly because of Akriti's actions, they were sort of sidelined from the villa. Yeah. And then fighting against all of it and then performing good. Their performance was top notch. Yeah. So they deserved it. Yeah. For me they deserved it, yeah. Also, But Digvijay deserved it more. I mean, Yeah. I would have loved, I think, Digvijay and Unnati winning it. the moment वो दिग्विजय ब्रेक डाउन हो गए थे, लाइक वी हैव सीन हिम ऑन स्क्रीन, बट वहाँ क्या चल रहा था उस वक्त, क्या मोमेंट था? एंड बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना, कैमरा कट होने के बाद भी कई चीज़ें होती है जो हम नहीं देख पाते. क्या बताना चाहोगे आप, वहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो मोमेंट तो ऑनेस्टली सबके लिए बहुत इमोशनल था. सनी वाज क्राइंग एंड देन कशिश वाज क्राइंग, दिग्विजय वाज क्राइंग. आई थिंक अ लॉट ऑफ अस वर क्राइंग. मैं रो रही थी, उन्नति रो रही थी, सारे लोग उस टाइम पे रो ही रहे थे. बट कभी कभी क्या होता है ना, वी कैन सी वन साइड ऑफ द स्टोरी, बट वी कैन सी वेयर द अदर साइड ऑफ where the other story is coming from. So Kashish का rent वाला part में तो I'm no one to comment on that because I don't know the realities of that. And she told me कि उसका accumulated income वाला चीज़ होता है ना, accumulated rent 1 लाख है. मम्मी पापा लोग का, उसका भाई का, ये सब मिला के उसने बोला. It's not only about her. That was the thing. Yeah. And also one thing that was cut was she had apologized. She had literally said that कि I'm gonna carry this baggage with me. And it's not that she wasn't apologetical. Yeah. I think she made a huge mistake, definitely. For me, that was a mistake. But she did apologize and she did realize it. And वो part editing में नहीं दिखाया गया है. So that is why she is so misunderstood by people कि इसने चौड़ में आके गलती की है. जबकि she is apologetic. She has told me multiple times that she feels so sad for Digvijay कि she had to gain a lot of courage to even talk to him. Yeah. क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अब मैंने आपका दिल तोड़ा है, मैं किस मुंह से बात करूं. वो वाला सीन था उसके साथ. So I could see that she's guilty about it. ऑल्सो शुभी, क्या आप कभी हर्ष को माफ कर पाएंगे? ये वही वाली बात हो गई, बोलना इजी होता है, करना इजी नहीं होता. नहीं, मैं हर्ष वैशाली दोनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी. द रीजन बीइंग आई हैव मूव्ड पास्ट इट. मैंने लिटरली हर्ष वैशाली का चैप्टर अपनी लाइफ से क्लोज करके, बंद करके, ओनली द लर्निंग्स आई एम कैरिंग फॉरवर्ड एंड आई हैव लेफ्ट ऑल ऑफ दैट साइड में. लेकिन द थिंग इज कि I can never forget being disrespected on national TV. I can never forget how he spoke to me. And I think it's high time that guys should understand that it's not okay to shout at and yell at girls like that. लड़की कर रही है तो आप कर रहे हो, ठीक है. But the way they treated me, and I was nothing but nice to both of them. And I wished both of them very goodwill. But उनके side से कभी वैसा नहीं था, तो I cannot. And only I know what I've been through and how tough it was for me to come out of it. Some of the contestants know who have seen me during that time. I used to break down. I can't even explain it to you. I used to break down so much during that time. So वो सब चीज़ें भूल पाना is not possible for me. ऑल्सो शुभी, मेरे ही इंटरव्यू में हर्ष ने ऐसा कहा है कि लाइक यू गाइज वर नॉट इन रिलेशनशिप. Yeah, we were not. ओके, सिर्फ आप लोगों का एक फ्लर्ट वाला जो होता है ना रिलेशन, वैसा कुछ था. तो फिर मतलब आप क्यों इतना फील कर रहे थे? मुझे ये जानना है आपसे. देखो बातें क्या थी ना, जब स्टार्टिंग में भी जब हर्ष मेरी बात भी हो रही थी ना, ऑल द एफर्ट्स वर फ्रॉम हिज साइड. सो इट वाज, आई हेट टॉकिंग अबाउट इट अगैन. मतलब आई फील कि हर्ष वैशाली का चैप्टर डन हो जाए, लेकिन फॉर वन लास्ट टाइम आई एम गोना टेल इट क्लियरली फॉर ऑल द व्यूअर्स हु हैव मिसअंडरस्टूड दिस पार्ट. सो हर्ष के साइड से कंटिन्यूस एफर्ट्स थे. आई टोल्ड हिम कि यू आर गोइंग टू अ रियलिटी शो, go and make a connection. If you fall in love someone, I'll not have that, I mean don't have that baggage. Yeah. He was the one who told me that I'm not gonna do anything, it is just for the game. He gave me that assurance. He told me कि don't change in 30 days,
don't meet people, I'm gonna come back and we'll, I mean, how guys say it ना कि I'm gonna come back and we are gonna make this work. वो वाली चीज़ थी. तो it was that betrayal कि आप कैसे किसी को promises करके and show पे जाके इतना गंदा treat कर सकते हो. That was the thing कि show में उसने accept भी कर लिया होता ना, मुझे कोई problem नहीं होती. In fact कोई और लड़की होती वहाँ पे तो मेरे लिए देखना भी इजी होता, बट मेरी ही फ्लैटमेट जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ बता रखा है, हर्ष को पूरा पता है. मैं रुशाली को ड्रॉप करने गई थी लिटरली, हर्ष से बात हो रही थी पूरे टाइम, कॉन्वर्जेशन वाली चीज़. हर्ष के साइड से माई प्रॉब्लम वॉज द वे ही ट्रीटेड मी, द वे ही डिड नॉट हैव एक्सेप्टेंस अबाउट वॉट ही हैज डन. ये तो ऑनेस्टली लड़कियों की आदत हो गई है कि लड़के प्रॉमिस कुछ करते हैं तोड़ते हैं. मेरा वो प्रॉब्लम नहीं था. प्रॉब्लम वाज कि ही नेवर एक्सेप्टेड इट. दैट वाज द थिंग. एंड देन ही केप्ट ऑन डिसरेस्पेक्टिंग मी एंड ही हैज़ इवन अब्यूज्ड मी. ही हैज़ इवन कॉल्ड मी नेम्स. डम बोल रहा है, गंदे से वॉक करके आ रहा है, गुस्से में बात कर रहा है. ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर अ प्रॉब्लम. इट वॉजंट जस्ट breaking the promise. It was a lot of things, guys. It was a mix of so many things that I kept facing. मतलब मेरे को टॉन्स आना, जैसे वो सब ऑन कैमरा आते भी नहीं है ना. दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एडिटर्स कि वो लोग उस पार्ट को डालें, बट ही यूज्ड टू पास कमेंट्स ऑन मी, ही यूज्ड टू टॉन्ट मी. तो दैट वाज टू मच टू टेक. एंड ऑफ कोर्स उसने सॉरी बोला है तो देयर इज अ रीजन उसने सॉरी बोला है. उसने जनता ज्यूरी में सॉरी बोला, उसने मुझे ऑफ स्क्रीन सॉरी बोला 2-3 बार. देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज apologetical, right? Of course he's done something wrong, and why do I have to explain it? I already have been through it. Stop asking me questions and stop blaming it to me, यार. मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था ऐसा कुछ होगा. लेट्स चेंज द टॉपिक. कुछ हम लोग आपके बारे में बात करते हैं. सो अब क्या करना है आगे, बिकॉज स्प्लिट्सविला तो ख़त्म हो चुका है, अब आगे चैप्टर तो बढ़ाना है. क्या नया करना चाहती हैं, क्या कोई म्यूज़िक वीडियो आने वाला है आपका? एंड हाँ, ऑल्सो लाइफ में एक लाइफ पार्टनर तो ज़रूरी होता ही है. शुभी को कैसा पार्टनर चाहिए? ठीक है, तो पहले आगे क्या करना है वाला आंसर, फिर पार्टनर वाला. तो बेस्ट पार्ट है, उस पर आएंगे. गपशप. तो अभी तो आई एम जस्ट letting everything come on my plate and then I'll choose. अभी it's too early for me to decide कि मैं यही करूँगी, ये नहीं करूँगी. ऐसे तो मैंने स्प्लिट्सविला करूँगी भी बहुत अच्छे से नहीं सोचा था, बट हो गया, right? So in your journey, whatever God always has better plans for you. So I'm gonna make God have that decision for me. But as per me, I wanna try into entertainment industry, and I think show के बाद भी audience has always been telling me that we want to see you in Bollywood. So I'm gonna try my hands on Bollywood industry, acting industry. Apart from that, I also feel कि लोगों को जो शुभी का फन साइड है ना वो नहीं देखा है. किसी भी शो में स्टार्टिंग से जाना, वाइल्ड कार्ड जाना इज वेरी डिफरेंट. सो आई माइट डू सम रियलिटी शोज स्टार्टिंग से जाके. वाइल्ड कार्ड तो मैं नहीं जाऊंगी अब. सो वुड यू लाइक टू डू बिग बॉस 18? लाइक जल्दी ही आने वाला है. एंड क्या कोई आपकी कोई डिस्कशन चालू है उनसे? ऑलरेडी कोई मीटिंग वगैरह किया है आपने? एज ऑफ नाउ कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई है. आई फील बिग बॉस कम्स विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, एंड Shubhi being Shubhi doesn't have a lot of controversies to her, but I also feel people love watching a character like me who is very genuine and real and all like in front of you, out there. I don't have on camera off camera personality. I'm just this Shubhi, चाहे show में थी, आपके सामने, audience के सामने, Instagram पे, everywhere Shubhi is same. So if my audience wants to see me, why not? अच्छा, जब आप और एक क्वेश्चन किया था मैंने आपको, पहले हम उस पे आते हैं कि कैसा पार्टनर चाहिए आपको. सो बताइए शुभी, कैसा पार्टनर चाहिए? ऑनेस्टली ये जो एक्सपीरियंस हो गया है ना स्प्लिट्सविला का, उसके बाद तो बिकॉज मैंने हर्ष पे भी बहुत टाइम बाद ट्रस्ट किया था. अराउंड 1 साल बाद किसी लड़के ने मुझे इतना कुछ बोला था एंड आई हैड अ ट्रस्ट ऑन हिम. और वो जिस टाइप से टूटा है ना, उसके बाद तो आई एम लाइक हाउ डू आई डिफरेंशिएट कब लड़का सच बोल रहा है, कब वो फेक प्रोमिसेस कर रहा है एंड खाली ऐसी हवे में मजाक में कर रहा है. तो आई एम गोना टेक सम टाइम टू गो ऑन डेटिंग एंड टू इवन थिंक अबाउट डेटिंग समवन. बट द काइंड ऑफ पार्टनर आई वांट इज रियल, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट and honest and humble and a family person. बहुत सारे and आ गए. But of course I want someone who compliments me and a person of integrity and dignity, who sticks to his values, who knows how to treat people, who can be humble and calm even at the worst times. काम नहीं रहे तो वो पार्ट आई थिंक मैं बैलेंस आउट कर दूंगी. बट हाँ, इतना होना चाहिए कि he has to be humble and he has to know his values. ऑल्सो शुभी, जनता जूरी पर जो हुआ था सीवेत और दिग्विजय के बीच में, सो
क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब जो भी वहाँ पे सिनेरियो जो क्रिएट हुआ था, इतने सारे फैंस थे एंड ऑल्सो यू गाइस आर पब्लिक फिगर, तो क्या एग्जाम्पल सेट हुआ उस दिन एंड जो भी हुआ वहाँ पर वो कितना गलत लगा आपको? आई फील जिस भी वजह से वो हुआ है ना, वो वजह उतनी बड़ी नहीं थी कि वो तमाशा इतना बड़ा बने, आराम से चीज़ें हैंडल हो सकती थी। बट एंड आपको पता है कितने अलग अलग जगहों से फैंस आए थे, दे ऑल वांटेड टू मीट अस, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग नाइस एंड पीसफुल आफ्टर द शो, अ हैप्पी मोमेंट, अ सेलिब्रेशन। बट देन वहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई एंड देन पीपल वर सो सैड क्योंकि दिग्विजय लेफ्ट वेरी अर्ली, उसके जो फैंस थे वो उससे मिल नहीं पाए एंड उस वजह से बाकी सब तो थे ही, आई थिंक दिग्विजय का ही दिग्विजय लक्ष्य, दे ऑल लेफ्ट अर्ली, सो आई हैड टू वीडियो कॉल देम एंड शो द फैंस क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे वो लोग। सो आई फील रियली बैड फॉर द पीपल हु केम फॉर a good moment and they had to see this because I really feel people should not get influenced by it. This is it's violence in any form is unjustified no matter what it is, and I feel really bad for Digvijay because I saw that guy, उसको जब push भी मिला ना, he did not, उसके रिफ्लेक्स में भी नहीं आया, that is why I respect him so much, उसके रिफ्लेक्स में भी नहीं आया कि मैं भी धक्का मारूं, so whatever happened should not have happened. So जब आप दिग्विजय और उन्नति को साथ में देखते हो, क्या लगता है देखकर शुभी की, मतलब कितना दिन चलेगा वो रिश्ता एंड क्या वो रियल है या फिर खाली शो तक ही रहेगा या फिर अभी थोड़े दिन और चलेगा? देखो मेरा भी स्टार्टिंग में ओपिनियन था कि उनका रिलेशन मुझे स्टार्टिंग में फेक लगा था, मैंने एक पॉडकास्ट में बोला भी था क्योंकि तब मैंने खाली शो के पर्सपेक्टिव से देखा था, शो के पर्सपेक्टिव से जब मैं वहाँ पे थी तब मुझे उतना ज़्यादा कनेक्शन उनका स्ट्रॉन्ग नहीं लगा था, फेक नहीं लगा था बट स्ट्रॉन्ग नहीं लगा था। शो के बाद बाहर आके व्हेन आई बिकेम फ्रेंड्स विद देम, व्हेन आई सॉ देम टुगेदर, आई हैव लिटरली सीन देम टुगेदर एंड मैं शुभी तो जानी इसलिए जाती कि वो झूठ नहीं बोलती, सो आई एम नॉट लाइंग हियर, they really have a very cute bond that they share and I really hope that they date and they take it forward, but अब वो उन लोग के ऊपर है because of course दिग्विजय की लाइफ में अभी different chapters आने वाले हैं, उन्नति की लाइफ में different चीज़ें होने वाली है, so it's on them to decide mutually if they want to date or no, but I love them together, I think they should stick together, very cute together. ऑल्सो शुभी, आपको रियलिटी शो से कितना प्यार है दैट तो वी नो, अगर आप बिग बॉस 18 में जाते हो, इन केस अगर इफ़ यू गो, तो आपने पहले के सीजन्स देखे होंगे, कई सारी चीज़ें हो जाती है बिकॉज स्प्लिट्स विला में तो कैमरास होते थे बट अब वो एक टाइम के लिए होते थे, बट यहाँ पे आपको 24/7 आपको कैमरे के सामने ही रहना है, सो उस चीज़ों के लिए कितना प्रिपेयर हो आप? एंड ऑल्सो अगर आपने कोई सीज़न देखा होगा, कोई ऐसा भी जो लेटेस्ट की अगर मैं बात करूँ, उसमें आपने देखा होगा विशाल के साथ भी वो जो थप्पड़ कांड हुआ एंड बहुत सारी चीज़ें हुई अंदर, मतलब मूड स्विंग्स होते रहते हैं लोगों के, अगर मैं ऐसा कह सकती हूँ। क्या कहना चाहोगे आप, जो भी हुआ था ये सीज़न भी जो OTT 3 गया, अगर आप होती घर में तो आपका क्या रिएक्शन होता? मैं तो हमेशा आई ऑलवेज बीन अगेंस्ट वायलेंस एंड मेरे ना एथिकली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, फॉर मी राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, मैं उस चीज़ में किसी से भी लड़ सकती हूँ, वही मेरा शो में भी था, भले शो में मैं उतना लड़ी नहीं बट आई वॉज स्टिल ऑनेस्ट एंड रियल एट लीस्ट। तो आई थिंक बिग बॉस इज ऑल्सो मेंट फॉर पीपल who don't have off camera and on camera personality, who can be real throughout, because वहाँ पे तो आप fake कर ही नहीं सकते, वहाँ पे तो cameras all time है, splits में तो तब भी cameras आते हैं, you are mentally prepared for it, Big Boss में तो ऐसा होता भी नहीं है, तो I think audience would want to see that real side, but अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं definitely ये थप्पड़ वाले situation में तो I would have not supported it, जैसे भले ही शिवित मुझ पे गुस्सा हो गया इस चीज़ को लेके that I took Digvijay's side, but I took the side of person who was right in my opinion. एंड वही चीज़ मैं बिग बॉस में भी करती एंड एक्साइटिंग तो होता है बिग बॉस डेफिनेटली एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी टॉक्सिक, बट स्प्लिट्स विला से तो कम ही टॉक्सिक है एंड आई थिंक स्प्लिट्स जाके मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि talking and taking a stand for yourself is the most important thing in a reality show. So I've learned my lesson. If I go there, of course, people are gonna see the same Shubhi in a different version, who is gonna fight back, who is gonna take stand for herself, and who will not be hurt in the show. अभी तो प्रॉपर सब कुछ मेंटली प्रिपेयर होके जाऊंगी ना. In fact, I feel same. Either you are in show, either you are outside somewhere, you should always take stand for yourself. Yeah, of course. मेरे साथ मैंने लिया भी होता. In reality, whenever things like that have happened, I take care of my family. It's been 10 years. I'm a very responsible person. मैं 10 साल से अपना घर, अपने अलावा पूरा फैमिली का भी घर चला रही हूँ. So I'm very mature like that. I know when to take a stand and everything. स्प्लिट्सविला में चीज़ें ही अलग हो गई थी बिकॉज आई वॉज हर्ट एंड मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि इतनी अच्छी दोस्त और ये लड़का दोनों मिलके कैसे मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं. आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. इसीलिए मेरे को टाइम लगा. बट ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस लर्न आवर लेसन्स एंड दैट्स ऑलवेज गोना बी वन ऑफ माई रिग्रेट कि
और स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों नहीं लिया, बिकॉज मेरी ऑडियंस को अभी भी वो खटकता है. सो आई एम गोना मेक श्योर कि शुभी चेंजेस इन दैट वे बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस एंड फॉर माई पीपल. एंड बट अब तो जो हो गया वो हो गया, अब आगे तो उससे सीख ही सकते हैं. ऑल्सो सीवेद के लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा नाराज तो होंगे ही वो आपसे शायद, बट क्या कहना उनसे, वो कैसे इंसान, कैसे वो अगर वो गुस्से में नहीं हो तो? गुस्से में नहीं हो तो बहुत चिल बंदा है. ही वुड जस्ट क्रैक जोक्स, he would be the most lively person in a room. He would make sure everyone's talking. He is that personality. मुझे शो में भी जाके इसलिए मेरे सबसे पहले दोस्त शिवित अनिका ही बने थे, because they made and first of all शिवित only made an effort to become a friend. एंड बहुत जॉली पर्सन है, ही इज़ वेरी नाइस लाइक दैट. अभी उसका गुस्सा मुझ पे जायज़ है बिकॉज किसी को भी लगेगा ना. अब लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो इस पे तो फिर मुझे भी गुस्सा आना चाहिए था उस पर. स्टार्टिंग में ही द मोमेंट आई एंटर्ड ही हैज़ बीन टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर्षन रुशादी. उसने लाइव पे भी जाके चीज़ें बोली जबकि ही कुड हैव स्पोकन टू मी एंड ही नोज माई स्टोरी, ही नोज इट सो वेल. तब भी उसने जाके ये बोल दिया कि 10 ही दिन का था ना, ये था क्या वो था क्या. 10 दिन का तो प्यार शो में भी था, वो तो मतलब 10 दिन का शो में हर्ट होना है, बट 10 दिन ऑफ कैमरा किसी से मिले हो, ऑफ कैमरा सारे प्रोमिसेस हुए हैं, तो वो उसने उस साइड से देखा ही नहीं. आई रियली फील ही शुड बी मोर एम्पैथेटिक टू गर्ल्स. आई थिंक उसको ना लड़कियों के इमोशन समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज ही इज अ नाइस गाय, बट जस्ट दैट इफ ही मेक्स दैट पार्ट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इवन अनिका इज सच अ स्वीट गर्ल एंड कभी कभी मुझे लगता है कि शिवित उसको भी और प्यार से रखे वाली चीज़ें. सो अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ नाइस गाय. आई मीन अब तो शो भी हो गया, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस. आई फेल्ट रियली बैड, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसका बाइट देखा और मेरा क्या होता है ना, मेरे आंसू चालू हो जाते हैं. आई वॉज वेरी हर्ट. आई वॉज लाइक इतना गंदा गंदा कैसे बोल रहा है कि शुभी की बैंड बजानी है ये सब. एंड देन आई वॉज लाइक ठीक है, यू कैन जस्ट बिकम अ बेटर पर्सन एंड फॉरगेट दैट दिस हैपेंड. ऑल्सो शुभी क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस के लिए जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं एंड हमेशा आपके लिए स्टैंड लेते हैं? आपके फैंस हमने देखा है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई एम तो शुभी बिकॉज ऑफ माई फैंस. ऑनेस्टली मैं 50 पे आई, 50K फॉलोअर्स के साथ आई थी. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 200K एक शो में वाइल्ड कार्ड आके बढ़ जाएंगे. एंड माई फैंस नेवर मेड मी फील लाइक अ वाइल्ड कार्ड, दे ऑलवेज मेड मी फील लाइक आई वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शो. यू विल नॉट बिलीव जो मैसेजेस मुझे आए हैं ना इतने लंबे लंबे Gmail पे कि वी हैव लर्नड हाउ टू be dignified and yet put your point. We have learned how to stay calm in a fight, and they've just loved my overall personality, and I have so much of gratitude for that. Like I was not expecting it, and thank you guys for standing by me. It really, मैं explain भी नहीं कर सकती how much it means for me, and I think more than any of the contestants, I needed it the most because I had a major reality check in the show, and you guys made me lift my head up and be the Shubhi. So thank you for that. Thank you for all the love. Thank you so much Shubhi for coming and बहुत मजा आया आपके साथ बात कर. I hope आप ऐसे ही धमाल मचाते रहो और भी कई रियलिटी शोज, मूवीज सारे आपके झोली में आए. Thank you so much. Thank you for having me.